Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 1, when, where and how. So let's start the remaining paragraph. Source of information means जानकारी का स्रोत. Historical sources are classified into two broad categories, literary and archaeological sources. The literary sources of medieval India can be divided into indigenous or writings by the Indians and foreign accounts. Apart from these, we have coins, inscriptions, and architecture. ऐतिहासिक स्रोत को वर्गीकृत किया है टू ब्रॉड कैटेगरीज में, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल स्रोत में. और जो लिटरेरी स्रोत है वो मध्यकालीन का है, मध्यकालीन समय का है. और इंडिया जो है वो उसको डिवाइड बांटा गया है इंडिग्नियस और राइटिंग्स में, तो वो भारतीय के द्वारा, और जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंट्स के द्वारा. तो ये जो पार्ट्स हैं जैसे कि यानी कॉइन्स का पार्ट्स है, या फिर शिलालेख का, या फिर जो भी संरचना का पार्ट है इसमें, तो मैन्युस्क्रिप्ट were a very important source of information for this period, which stretches from 700 to 1750. But one problem of manuscript is that since they were copied by hand, changes in words and sentences were brought in by scripts who copied these manuscripts. Thus, new words, sentences, changed the meaning of the original manuscript. This definitely is a problem when we study a manuscript from a historical point of view. यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत थे हमारे जानकारी के लिए उस समय में. और इसे जो है खींच कर 700 से 1750 के बीच में कर दिया गया. और लेकिन प्रॉब्लम क्या थी मैन्यूस्क्रिप्ट की कि इसे कॉपी किया गया हैंड से, तो उसमें शब्दों का भी हेर फेर हो गया, सेंटेंसेस का भी हेर फेर हो गया. और जब उसे स्क्रिप्ट्स में लाया गया तो वो कॉपी किए हुए, जो कि कॉपी किए हुए मैन्यूस्क्रिप्ट थे, तो इनमें क्या है शब्दों का और लाइंस का भी बदलाव हुआ, सेंटेंसेस का भी बदलाव हुआ, जो कि उसका मीनिंग भी बदल गया. ओरिजिनल जो वास्तविकता की मैन्यूस्क्रिप्ट थी उससे इसका बिल्कुल ही मीनिंग बदल गया. और वाकई में ये एक जो है परेशानी का ही मतलब बन गया था. यहाँ परेशानी हो गई थी जब अध्ययन किया गया मैन्यूस्क्रिप्ट का, तो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल ही अलग था. लिटरली सोर्सेस, अकाउंट्स ऑफ इंडियन राइटर्स, यानी कि जो भारतीय लेखक थे उनका खाता. In the medieval period, we had all kinds of writing by contemporary writers like Bahadur's Babarnama, Jahangir's Jahangirnama, fascinating biographies giving the first-hand accounts of their lives and times. तो मध्यकालीन युग में क्या है कि अलग अलग तरीके की जो राइटिंग्स लिखी गई थी आधुनिक राइटर्स के द्वारा. तो जैसे कि बाबर का बाबरनामा लिखा गया था, जहांगीर का जहांगीरनामा लिखा गया था. तो ये जो बायोग्राफी थी जो उनका, तो वो एक हाथ से ही लिखा गया था उस समय में. ठीक है, तो ये उनके खाते में जोड़ा था कि उसके समय में क्या हुआ था, उनका रहन सहन कैसा था. The other very important literary sources of this period are accounts by court historians who were appointed by rulers to record the events of their rule. Some of these major accounts of this period are Abul Fazl's Akbarnama and Ain-e-Akbari, and an account of Delhi Sultanate by Siazuddin Babarni titled Turk-e-Firuz Shahi. तो यानी कि अगर दूसरे जो थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत थे इस पीरियड में, जो उनका खाता जो कोर्ट के ऐतिहासिक लोगों के द्वारा रखा गया और जिन्हें अपॉइंट किया गया था शासकों के द्वारा, जो कि इवेंट्स का रिकॉर्ड रखते थे जो उस शासन में होते थे. तो कुछ जो मेजर खाते थे उस समय के, जैसे कि आबुल फैजल्स का अकबरनामा, आईने अकबरी, और जो अकाउंट्स दिल्ली सल्तनत के थे जो ज़ियाजुद्दीन बाबरनी टाइटल दिया गया था उसे, तारीख़ फ़िरोज़ शाही में.
Another type of literary sources are accounts written by scholars about the kingdoms in which they lived. Such books were called court chronicles. Raj Tarangini by Kal Khana is one example of perfect court chronicle. This book gives us a detailed account of the history of Kashmir. Chand Bardai's Prithvi Rajas gives us an account of the rules of Prithviraj Chauhan. Many other writings by Indian writers like Firdausi's Shahnama, Inayat Khan's Shahzanama, or Minhaz Siraz, Tabaqat Firoz Shahi are important example of literary accounts of this period. तो अब यहाँ देखेंगे कि दूसरे जो साहित्यिक स्रोत थे इस अकाउंट्स के, जो विशेषज्ञों ने लिखे थे इस राज्य के, जो वहाँ रहते थे और राज्य के द्वारा उनके राज्य के लिखे गए थे, और जो बुक्स थी कोर्ट की, जैसे राज तरंगिनी बाय खालहाना के द्वारा लिखी गई थी, और एक ये परफेक्ट कोर्ट का क्रॉनिकल्स था, और ये जो बुक्स में उनकी डिटेल्स दी गई थी और जो इतिहास बताया गया था कश्मीर का। तो चंद बरदाई जो थे और पृथ्वी, यहाँ पर जो पृथ्वी राजस्व ने दिया था इस अकाउंट को, वहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसमें लिखा था, और कई जो राइटिंग्स थी दूसरे राजाओं के बारे में, जैसे कि फिरदौसी शाहनामा, इनायत खान्स शाहनामा, मिनास सिराजस और ताबायत फिरोज शाही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे यहाँ के साहित्यिक अकाउंट्स के उस पीरियड में। Beside accounts of writers, other literary sources include the religious literatures like the Ramayana and Mahabharata written in regional languages, secular literature written in various Indian regional languages। यानी यहाँ पर जो राइटर्स के अकाउंट्स थे उसमें दूसरे भी साहित्यिक स्रोत भी इंक्लूड शामिल थे, जैसे कि धार्मिक साहित्य जो थे, जैसे रामायण महाभारत, ये सब भी जो कि क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए थे, और ये धार्मिक साहित्य भी थे जो कि अलग अलग भारतीय क्षेत्रीय भाषा में थे। These sources tell us about the life and values of the people who lived at that time. The archival records containing the governmental documents, royal orders, treaties, court records, etc. are also an important resource of information. These also include the फरमान sent by rulers. अब ये जो स्रोत थे ये हमें बताते थे वहाँ उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके मूल्यों के, लोगों के मूल्यों के बारे में जो कि वहाँ उस समय में रहते थे। और जहाँ पर जो आर्चिवल रिकॉर्ड्स थे इनको शामिल किया गया सरकार के कुछ कागजातों के द्वारा, या उनमें वो शामिल थे, और राजसी जो फरमान जारी होते थे या कोई समझौता होता था उनका रिकॉर्ड रखा गया। और यहाँ तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत थे जानकारी के, और इसमें शामिल थे फरमान जो राजा के द्वारा भेजा जाता था। फॉरेन अकाउंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाता। Foreign accounts are an invaluable resource of information about the medieval period because foreign travelers and scholars who visited India wrote candidly and honestly about what they saw and experienced in India. Some important foreign accounts are Alberni's Taqi-e-Hind, Ibn Battua's Riala accounts by Al-Masudi, Niccolo Conti, Sir Thomas Rowe, Francois Bernier, Domenico Paes, and Marco Polo, etc. Niccolo Conti has given a detailed description of the Vijayanagara kingdom and the capital city of Hampi. अब जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंट्स थे वो भी बहुत इनवेल्यूबल स्रोत थे जानकारी के मध्यकालीन युग में, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे, जो विशेषज्ञ थे, जो भारत घूमने आए थे, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से जो भी देखा या अनुभव किया उसके बारे में लिखा, और कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंट्स थे उन्होंने उनके बारे में उन्होंने भी उसमें लिखा उनके बारे में। तो जैसे कि फॉरेन अकाउंट्स थे एल्बर्नीस के, ताके हिंद के, और रियाला अकाउंट्स जो कि एल मसूदी के द्वारा लिखा गया था, और निकोलो कॉन्टेन सर थॉमस के द्वारा, और फ्रांकोइस बर्नियर, डोमिनिगो पेस, मार्को पोलो एक्सेट्रा ये
निकोलो कॉन्टी ने जो इसके बारे में डिटेल्स दी थी, जो भी डिस्क्रिप्शंस दी थी विजयनगरा के बारे में, विजयनगरा राज्य के बारे में, तो ये कैपिटल सिटी जो है हम्पी की थी. Apart from these writing, we have a lot of writing by Bhakti and Sufi sants and writing in regional languages like Bengali, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Malayalam, etc. यानी कि जो अगर हम राइटिंग्स के पार्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लेख देखने के लिए मिलेंगे जो भक्ति के द्वारा लिखे गए हैं, जैसे और सूफी संत के द्वारा लिखे गए हैं. तो इनकी जो है क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे कि बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी और तमिल, मलयालम एक्सेट्रा.